Hello, my dear students, and welcome once again to Zenith Academy Online. Today, we are doing a very important poem for ISC class 11th and 12th, that is The Black Santa, written by Alison Joseph. Now, in this video, I'll be giving you word by word explanation of the poem. I'll be giving you word meanings, I'll be giving you the literal meaning of that stanza, and then the analysis and the literary devices as well. So you'll be completely exam ready and you'll be able to score full marks in the exam. So without wasting any time, let's begin. First, let me introduce you the poem, The Black Santa. Okay, so in this poem, basically there are no stanzas. This is a reflective poem, which is a free verse poem. Okay, what is a free verse poem? In which there are no verses. Okay, and it is a reflective poem means it shows the reflection of the author and as a society as a whole, है ना. उसका what he thinks, क्या reflect करते हैं, वो reflective poem होती है. In which the speaker recalls meeting a department store Santa as a child. जब स्पीकर एक बच्चा था तब वो रिकॉल कर रहा है, क्या रिकॉल कर रहा है, मीटिंग अ डिपार्टमेंट स्टोर सेंटा. जब वो डिपार्टमेंट स्टोर में गया था तो वहाँ का जो उस डिपार्टमेंट स्टोर का जो सेंटा था उसके साथ उसकी मीटिंग को रिकॉल कर रहा है. थ्रू द चाइल्ड्स इनोसेंट बिलीफ द पोएम चैलेंजेस द डिफॉल्ट स्टीरियोटाइप ऑफ सेंटा एज वाइट. सो जब हम बच्चे होते हैं ना, हमारा इनोसेंट बिलीफ होता है कि देखो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ होता है, एक डिफॉल्ट स्टीरियोटाइप बना होता है कि सेंटा कैसा होता है, प्लम्पी, वाइट, पिंक गालों वाला, गोरा, राइट. सो थ्रू द चाइल्ड्स इनोसेंट बिलीफ द पोएम चैलेंजेस द डिफॉल्ट स्टीरियोटाइप ऑफ सेंटा एज वाइट एंड हाईलाइट्स हाउ प्रिजुडाइज इज लर्नड एंड इट इज़ नॉट नेचुरल. तो अभी तो ये बच्चा ही है तो उसको पता नहीं है कि ये जो प्रिजुडाइज है कि सेंटा हमेशा वाइट होता है ना, ऐसा दिखता है, वो हम एक्चुअली सीखते हैं. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सीखते हैं, ये नेचुरल नहीं है. तो अभी तो ये जो ऑथर ने जब इनसे मिले थे इस सेंटा से, तब वो बच्चे थे, तब उनको नहीं पता था कि सेंटा इज सपोज टू बी वाइट. ओके, तो ये एक चाइल्ड की इनोसेंट बिलीफ है जो चैलेंज करता है इस डिफॉल्ट स्टीरियोटाइप को कि सेंटा वाइट ही होता है. इट ऑल्सो कमेंट्स ऑन कंज्यूमर कल्चर, है ना. आजकल हमारा कंज्यूमर कल्चर कैसा हो गया उस पर भी कमेंट कर रहा है कि कैसे टेलीविजन और एडवर्टीजमेंट शेप करती है बच्चों की डिज़ायर्स को. सो इट ऑल्सो कमेंट्स ऑन कंज्यूमर कल्चर, हाउ टेलीविजन एंड एडवर्टीजमेंट शेप चिल्ड्रंस डिज़ायर. So students, I have used very good keywords in writing this introduction and also whenever I am explaining the stanzas, analysis, everything. So please either take a screenshot of the slides or make notes while I am teaching. These are very good, beautiful keywords that will help you to score good marks. Okay, so that's the introduction of the poem. Okay, now first of all, there are no stanzas in this poem. It's a free verse poem, but to explain you, okay, I have taken few lines and considered this as a stanza so that I can demarcate. Okay, so it's not stanza 1 but it's the part 1 where I have taken these lines. I remember sitting on his body lap, fake beard slumping off his face, his breath reeking sweetly of alcohol, a scent I didn't yet know at 5. And I didn't know that Santa was supposed to be fat, white, merry, not shaky and thin like this. Okay, so here let me give you the word meanings first. Okay, so slumping means the fake beard, fake you know, nakli. The fake beard, beard means दाढ़ी, slumping off his face, उसके face से hang कर रही थी loosely. Okay, his breath reeking sweetly of alcohol. Reeking मतलब smelling very strongly of alcohol. Okay, alcohol आपको पता ही है, शराब. A scent I didn't yet know at 5. तो वो scent जो मैं जब 5 साल की थी तब मुझे नहीं पता थी कि ये जो स्वीटली स्मेल आ रही है वो अल्कोहल की है. And I didn't know that Santa was supposed to be fat, white, merry, not shaky and thin like this. Okay, so shaky means unsteady or trembling. Okay, so she said, I remember sitting on his body lap. उनकी लैप पे बैठना मुझे याद है. उनकी फेक बियर्ड्स उनके फेस से स्लम्प कर रही थी
और ब्रेथ में से रीकिंग स्वीट स्मेल आ रही थी अल्कोहल की, वो सेंट जो मैं जब 5 साल की थी मुझे नहीं पता थी कि ये अल्कोहल की स्मेल है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि सेंटा इज सपोज टू बी फैट वाइट एंड मेरी, मेरी मीन्स ऑलवेज हैप्पी, एंड नॉट शेकी एंड थिन, नॉट अनस्टेडी ट्रेम्बलिंग एंड थिन लाइक दिस। ओके, so now let me tell you the exact literal meaning of this. The speaker remembers sitting on the lap of a man dressed as Santa when she was 5. His artificial beard, okay, I have used different words. Fake beard की जगह artificial beard use किया है ताकि same words आप explanation में ना लिखे, है ना, आप अलग word लिखे. His artificial beard hangs awkwardly. Okay, again I have used a different word. And his breath smells of alcohol, though she cannot identify it. She is unaware of the expected image of Santa, okay, which is fat, white, and cheerful. So she accepts this thin, trembling Santa naturally. So क्योंकि वो एक बच्ची थी, उसको नहीं पता था कि expected image of Santa कैसी है, कि वो फैट, वाइट, चेयरफुल ही होना चाहिए, इसलिए उसने ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया इस थिन ट्रैम्बलिंग सेंटा को, जो कि एक नेचर होता है बच्चों का, नेचुरली उसने ये एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अभी तक वो छोटी है, अभी तक उसको पता ही नहीं है, शी इज अनअवेयर ऑफ द एक्सपेक्टेड इमेज ऑफ सेंटा. Okay, so whenever you are told to write the meaning, okay, you're supposed to explain, then don't use the same words that are there in the poem. Okay, use different words. So now let's analyze or let's write the interpretation. अभी हमने exact word to word meaning तो दे दिया है ना, अब उससे कहना क्या चाहते हैं, उससे क्या इंटरप्रिटेशन है. तो पहला इसमें पॉइंट है चाइल्डहुड का इनोसेंस. द चाइल्ड नोटिसेस फैक्ट्स बट डू नॉट जज. एक बच्चा फैक्ट तो नोटिस करता है लेकिन जज नहीं करता है. एडल्ट आयनी. द ग्रोन रीडर अंडरस्टैंड्स द सैडनेस बिहाइंड द इमेज, दैट इज अल्कोहल, वीकनेस, है ना. तो हमारी आयरनी है ये बड़े लोगों की. एक जो बड़ा रीडर है, ग्रोन रीडर, उससे समझ आ रही है कि सैडनेस है बिहाइंड द इमेज ऑफ पर्सन हु इज स्मेलिंग ऑफ अल्कोहल, हु इज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. ओके, ना स्टीरियोटाइप्स आर इंट्रोड्यूस्ड. तो इसी पहले ही फ्यू लाइन्स में स्टीरियोटाइप इंट्रोड्यूस कर दिया है एज समथिंग द चाइल्ड डज नॉट नो येट. ओके, एंड दैट बायस इज लर्नड लेटर. और ये बायस धीरे धीरे लाइफ में आगे चल के उसे वो लर्न करता है. इट्स नॉट नेचुरल. ओके, इट्स लर्नड लेटर. अब इस फ्यू लाइन्स में लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से आए थे? इमेजरी थी, क्योंकि यहाँ फेक बियर्ड स्लम्पिंग, ये जो वर्ड्स है फेक बियर्ड स्लम्पिंग, इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि ओके उनकी नकली दाढ़ी ऐसे स्लम्प कर रही होगी. ब्रेथ रीकिंग. सो दिस टू फ्रेजेस क्रिएट्स अ विविड सीन, वी आर एबल टू इमेजिन. देन आयरनी, चाइल्ड्स इनोसेंस वर्सेस एडल्ट अंडरस्टैंडिंग, ये एक आयरनी है, राइट. कॉन्ट्रास्ट है यहाँ, ट्रेडिशनल सेंटा विच इज वाइट, fat and merry versus this thin Santa which is thin and shaky. Okay, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ लाइंस, जिसे मैंने यहाँ स्टैंजा 2 कहा है. याद रखिए ये स्टैंजा नहीं है, जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन आई हैव रिटन लाइक दिस. डिपार्टमेंट स्टोर Santa who listened as I reeled off that year's list. A child's oven I would burn my fingers on. A mini record player of gaudy plastic I dragged from room to room by its precarious orange handle. तो अब ये जो डिपार्टमेंटल सेंटा है वो उसकी बात अच्छे से सुन रहा है. एज आई रील्ड ऑफ ईयर्स दैट ईयर्स लिस्ट. रील्ड ऑफ का क्या मतलब होता है? जल्दी जल्दी बोलना. सेड क्विकली इन अ रश, है ना, जल्दी जल्दी मैंने उस साल की उस ईयर की लिस्ट को रीड किया. ठीक है. अ चाइल्ड्स ओवन आई वुड बर्न माई फिंगर्स ऑन. मुझे एक खिलौने वाला ओवन चाहिए था जिस पर मैं अपनी उंगलियां जलाऊंगी. अ मिनी रिकॉर्ड प्लेयर, एक रिकॉर्ड प्लेयर छोटा सा चाहिए था. ऑफ गॉडी प्लास्टिक, गॉडी इज टू ब्राइट, शोई, चमकदार, वो जो प्लास्टिक होता है ना वैसा. आई वुड ड्रैग फ्रॉम रूम टू रूम, जिसे मैं एक रूम से दूसरी रूम तक ड्रैग करके ले जाऊँ. बाय इट्स प्रीकैरियस ऑरेंज हैंडल. प्रीकैरियस मतलब अनसेफ, जो एकदम जल्दी टूट जाता है ना, उसे प्रीकैरियस मतलब एक तो वो गॉडी प्लास्टिक का बना हुआ था, छोटा सा हो, जिसे मैं एक रूम से दूसरे रूम पे ले जाऊं, और उसका हैंडल भी वो प्रिकैरियस ऑरेंज कलर का हैंडल हो कि जो इजीली निकल आए, वैसा टाइप का. ठीक है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू द डिटेल्ड मीनिंग. सो दिस इज डिपार्टमेंटल स्टोर सेंटा हु लिसन्स व्हाइल द चाइल्ड क्विकली टेल्स हिम और हिम हर विश लिस्ट. जब उनकी विश लिस्ट वो सुनाती है
डिपार्टमेंटल स्टोर सेंटा को, तब वो सुन रहा है और बच्चा कैसे बता रहा है, क्विकली बता रही है बच्ची। शी आस्क फॉर अ टॉय ओवन, उसे क्या चाहिए, एक खिलौने वाला ओवन चाहिए। इवन दो शी माइट बर्न हर फिंगर्स, इवन दो उसकी उंगलियां उस पर जल सकती है, ऐसा उसने कहा। शी वॉन्ट्स अ स्मॉल ब्राइट प्लास्टिक रिकॉर्ड प्लेयर दैट शी वुड ड्रैग अराउंड बाय इट्स अनस्टेबल ऑरेंज हैंडल, उसको एक ऐसा छोटा सा लेकिन एकदम शाइनी ब्राइट प्लास्टिक रिकॉर्ड प्लेयर चाहिए था जिसे वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाए, खींचते हुए उसके अनस्टेबल ऑरेंज हैंडल से। तो बच्चों प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स वहाँ से नहीं उठाए हैं। अक्सर क्या होता है, बच्चे जब मीनिंग लिखते हैं तो सेम वर्ड्स लिखते हैं, तो अगर आप वही वर्ड का वही सेम मीनिंग वाला बट डिफरेंट वर्ड लिखोगे तो एग्जामिनर को आपकी वोकेबलरी ज़्यादा पता चलती है, एग्जामिनर को पता चलता है कि ओके आपने मीनिंग लिखा है, मतलब आपने सेम वर्ड ऐसे आपको पता है इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। सो यू इम्प्रेस द एग्जामिनर्स, यू गेट गुड मार्क्स, ओके। Now let's analyze this stanza. This stanza captures consumer desire and childhood excitement. ये दो चीज़ को कैप्चर करती है, क्या कि कंज्यूमर जो लोग होते हैं उनके क्या डिज़ायर होते हैं, है ना, शाइनी कैसा चाहिए उनको, और बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है, वो दोनों चीज़ों को कैप्चर किया है। द डिटेल्ड टॉय डिस्क्रिप्शन शोज इनोसेंस एंड चाइल्ड्स प्लेफुल इमेजिनेशन, जो एकदम डिटेल में बताया है कि ऐसा गाउडी होना चाहिए, उसका ऑरेंज हैंडल होना चाहिए, है ना, तो उससे क्या पता चलता है, बच्चे की इनोसेंस पता चलती है और उसका प्लेफुल इमेजिनेशन हमें पता चलता है। Santa becomes a listener or authority figure in a commercial setting, that is a store Santa. तो सेंटा एक लिसनर के जैसा यहाँ पे दिखा रखा है और वो भी एक कमर्शियल सेटिंग में, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर वो है, राइट। So those who doesn't understand Hindi, this video is for them as well, because I have written everything very clearly in English and I am reading that out too. And for those who don't who wants कि मैं हिंदी में बताऊं तो मैंने उसका भी मीनिंग आपको बता रही हूँ साथ साथ में, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश में इसे समझो और इंग्लिश वर्ड्स ही याद रखो और ऐसा कैसा आंसर में लिखो। अब लिटरेरी डिवाइस इसमें क्या है, इमेजरी है, इमेजरी हर स्टैंजा में है। यहाँ पे स्पेसिफिक टॉयज एंड कलर्स आर शोन हियर, गॉडी प्लास्टिक, ऑरेंज हैंडल। सो वेन एवर यू आर आस्क्ड लिटरेरी डिवाइसेस, आप लिटरेरी डिवाइसेस तो लिखोगे ही, वो फ्रेज भी लिखोगे जहाँ पे ये लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, ठीक है। टोन कैसा है, ईगर, चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म इज देयर। एंजबमेंट, एंजबमेंट कब होता है बच्चों, व्हेन लाइन्स रन ऑन लाइक अ ब्रेथलेस लिस्ट, ओके। नाउ लेट्स रीड ऑन द थर्ड स्टैंजा, which is I'm again saying not a stanza but just the flow of lines. An etch a sketch I'd ruin by twisting its dials too hard, my requests as solemn as prayer, fervid fueled by too many hours of television, too many commercials filled with noisy children elated by the latest game or toy. बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ हर जब भी मैंने एक अलग अलग स्टैंजा लिया है, मैंने वहाँ एक पिक्चर भी लगाया है, ठीक है। ये पिक्चर भी मैंने बहुत ढूंढ के बहुत इमेजिनेशन के साथ इसको लगाया है ताकि आप रिलेट कर सको। आप हर पिक्चर को अगर आप याद रखोगे तो आप उसके बारे में लिख पाओगे, ठीक है। सो एच स्केच क्या होता है, एक ड्राइंग टॉय होता है ना, जिसमें ऐसे नॉब्स बने होते हैं, आप घुमा घुमा के फिर उसमें अलग अलग ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसको और क्या क्या चाहिए, उसकी लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। एन एच स्केच है ना, उसे एक एच स्केच चाहिए जिसे मैं रूइन कर दूंगी, खराब कर दूंगी। बाय ट्विस्टिंग इट्स डायल्स टू हार्ड, उसके डायल्स को घुमा घुमा के मैं रूइन कर दूंगी। माई रिक्वेस्ट्स एज सोलम एज अ प्रेयर, सोलम मतलब एज सीरियस, जैसे हम प्रेयर करते हैं कब सीरियस होते हैं, तो इट इज हर रिक्वेस्ट आर एज सोलम एज अ प्रेयर। फॉरवर्ड फ्यूल, फॉरवर्ड मतलब इंटेंस या पैशनेट, फ्यूल्ड मतलब एनर्जी से भरी हुई, अपने पैशन से भरी हुई। बाय टू मैनी आवर्स ऑफ टेलीविजन, too many commercials filled with noisy children elated, very happy by the latest game or toy. Let me explain you this. She also asked for an etch a sketch which she would probably spoil by twisting its knob too hard. Her wishes are made seriously like a prayer. These desires are strongly influenced. ये desire कैसे influence हुए, strongly influenced हुए हैं by long hours of television and advertisements showing excited children with new toys. तो यहाँ पे जो
ऑथर है वो मांग रही है एन एच स्केच, अ टॉय, है ना, जिसे वो खराब कर देगी, प्रोबेबली उसको स्पॉइल कर देगी, उसके नॉब्स को बार बार हिला हिला के, ट्विस्ट कर करके। और उसकी जो विशेस है वो इतनी सीरियसली है, जैसे कि हम प्रे करते हैं भगवान के आगे जाके, जब हम प्रे करते हैं गॉड के आगे, राइट, तो हम कितने सीरियस होते हैं। तो वैसे ही एक प्रेयर के जैसा जिसकी विशेस भी बहुत सीरियस है, ठीक है, बहुत फ्यूल है, बहुत पैशन के साथ उसने ये डिमांड्स रखी है। और ये जो जितनी भी उसकी डिज़ायर्स है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई, उससे कहाँ से प्रेरणा मिली है। जब लंबे घंटों तक, लंबे लंबे घंटों तक हम टेलीविज़न के सामने बैठे रहते हैं और एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, राइट। दीज डेज यू डोंट सी एडवर्टीजमेंट्स ऑन टीवी अलॉट, बट इन ओल्डन एरा, है ना, जब मेरे टाइम पे हम लोग कोई भी एडवर्टीजमेंट होती है सिर्फ टीवी वॉज द ओनली सोर्स। Now you have YouTube, now you have Insta, so many other places where you see advertisement. Earlier it was either through newspapers or through television. तो उस टाइम पे कंज्यूमर डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे टेलीविज़न के एडवर्टीजमेंट से, जहाँ पे दिखाते थे, जहाँ पे दिखाए हैं एक्साइटेड चिल्ड्रन विथ न्यू टॉयज़, नए नए टॉयज़ के साथ बहुत एक्साइटेड चिल्ड्रन दिखाए जाते हैं, जिससे कि ये चीज़ें इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे। तो सिमिली यहाँ यूज़ की है, एज सोलम एज प्रेयर, है ना, कैसी सोलम एज प्रेयर, सो अ सिमिली इज यूज्ड। एलिट्रेशन इज यूज्ड, फॉरवर्ड फ्यूल्ड, फर्स्ट लेटर सेम, ओके। इमेजरी, नॉइजी चिल्ड्रन इलेटेड, यहाँ पे एक इमेजरी है ना, आप इमेजिन कर पा रहे हो कि बच्चे चिल्ला रहे हैं खुशी से। रिपीटेशन, टू मैनी, ओके, सो दिस emphasizes the excess of TV commercials. Now let's go on to the next set of lines. I bet none of them ever sat on lap of a Santa who didn't ho-ho in jolly mirth, whose sunken red eyes peered out from under his oversized wig and red velveteen cap, his teeth yellow, long fingers tinged with yellow. ठीक है, आई बेट, मैं शर्त लगा देती हूँ कि कोई भी नहीं बैठा होगा कभी भी ऑन द लैप ऑफ सेंटा हु डिडंट हो इन जॉली मर्थ, है ना, जो जिसने हो जैसी खुशी वाली, जॉली मर्थ मतलब बहुत जॉय और लाफ्टर की, मर्थ से जिसने जो हो नहीं किया, जिसने हु संकन रेड आईज पियर्ड, संकन मतलब हॉलो, जो एकदम डीप गहरी खड्डे में गई हुई है ना, हॉलो डीप सेट, जो एकदम सॉकेट में अंदर डीप बैठी हुई है। हु संकन रेड आईज पियर्ड आउट फ्रॉम अंडर हिज ओवरसाइज्ड विग, पियर्ड आउट मतलब लुक्ड क्लोजली, एकदम ध्यान से देखा, ठीक है, फ्रॉम हिज ओवरसाइज्ड विग, उसकी जो विग थी बहुत ओवरसाइज्ड थी, ठीक है। एंड रेड वेलवेटीन कैप, वेलवेटीन कैसा था, वेलवेट, इट्स अ सॉफ्ट फैब्रिक ना, सॉफ्ट कॉटन का ही एक अलग फैब्रिक होता है, बट विच इज़ वेरी सॉफ्ट। लॉन्ग फिंगर्स टिंच्ड विथ येलो, टिंच मतलब जिस लंबी फिंगर्स जिसकी, टिंच्ड विथ येलो, टिंच मतलब उसकी एकदम पीली पड़ गई है ना, स्लाइटली कलर्ड येलो, जैसे हम बोलते हैं ना एक टिंच आ गया है उसमें येलो कलर का, तो इट इज स्लाइटली कलर्ड, ओके। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. The speaker thinks those TV children probably never sat on a Santa's lap like hers. Her Santa does not laugh loudly, ho ho ho, in happy joy. He has tired, hollow red eyes, an oversized wig and red cap, yellow teeth and long fingers that are stained yellow. तो अब स्पीकर को लग रहा है, स्पीकर सोच रही है कि कोई भी ये टीवी पे जो बच्चा है प्रोबेबली कोई भी बैठा नहीं है सेंटा की लैप पे, जैसे कि वो बैठी हुई है, और उसका जो सेंटा है वो लाउडली लाफ नहीं कर रहा है, हो नहीं कर रहा है इन हैप्पी जॉय, जबकि ये बहुत टायर्ड है, हॉलो रेड आईज है, ओवरसाइज्ड विग है और रेड कैप पहनी हुई है, इनके टीथ येलो है और लॉन्ग फिंगर्स जो कि येलो कलर में स्टेन्ड है। अब हम इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं. द रियल सेंटा हियर इज शोन एज ह्यूमन, एग्जॉस्टेड, पॉसिबली इल और एडिक्टेड, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द चेयरफुल मिथ, है ना. जो मिथ है कि हमेशा एक चेयरफुल वाइट सेंटा होगा, लेकिन यहाँ जो रियल सेंटा उसके सामने है वो एक ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन जो हम देखते हैं, जो एग्जॉस्टेड है या फिर शायद बीमार है या फिर एडिक्टेड है ना, शराब से एडिक्टेड है या किसी से भी, जो कि बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द चेयरफुल मिथ दैट वी सी. द चाइल्ड्स वर्ल्ड कोलाइड्स विथ हार्श रियलिटी, येट शी स्टिल बिलीव्स.
बच्चे की जो वर्ल्ड है उसका कोलिजन हो चुका है, कोलाइड कर चुका है वो एक हार्श रियलिटी से, बट स्टिल शी बिलीव्स. The details create sympathy and also expose the artificiality of commercial holiday images. ओके तो यहाँ पे जो डिटेल्स दे रखी है उससे सिंपैथी तो क्रिएट होती है, क्योंकि वो उससे दिख रहा है कि वो एग्जॉस्टेड है या पॉसिबली इल है ना, बिकॉज शी इज़ राइटिंग ऑल दिस. तो एक सिंपैथी तो क्रिएट करती ही है, ये लाइंस हमें भी दिख रहा है. और वो एक चीज़ को एक्सपोज कर रही है जो कि आर्टिफिशियली हमें दिखाया जाता है कि जो हॉलीडे की इमेजेस होती है, क्रिसमस हॉलीडेज़ की जो इमेजेस होती हैं उसमें कितना आर्टिफिशियल होता है सब चीज़. तो ये एक एक्सपोज कर रहा है उसको कि ये जो डिटेल्स उन्होंने बताई है यहाँ पे कि इज़ टायर्ड, इज़ एग्जॉस्टेड, है ना, उसकी लंबी पीली उंगलियां हैं, पेल उंगलियां हैं, दांत पीले हैं. तो सिंपथी क्रिएट की है और एक्सपोज भी किया है जो आर्टिफिशियली हमें कमर्शियल्स में दिखाया जाता है. अब लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से हैं यहाँ? अल्यूजन है यहाँ पे, हो टू द फेमिलियर सेंटा इमेज. ओके तो यहाँ एल्यूजन है, इमेजरी है, संकन रेड आईज, येलो टीथ, टिंज्ड विथ येलो, इन सब से हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो सेंटा कैसा दिखता होगा. कॉन्ट्रास्ट है यहाँ मीडिया सेंटा वर्सेस दिस वॉर्न आउट सेंटा, जो मीडिया में दिखाया जाता है और ये वॉर्न आउट सेंटा में. कलर इमेजरी इज देयर, रेड येलो, विच इंटेंसिफाइज द अनसेटलिंग पिक्चर. Let's move on to the next set of lines. I did not find it strange to call this man Santa, to whisper my childish whispers into his ear, to pull on his sleeve to let him know I really deserved all that I'd asked for. I posed for an instant photo with him, a woolen cap over my crooked braids, mittens sewn to my coat sleeves. यहाँ पहले मैं वर्ड मीनिंग्स आपको बता देती हूँ. आई डिड नॉट फाइंड इट स्ट्रेंज, मुझे स्ट्रेंज नहीं लगा इस मैन को सेंटा कहने में. टू विस्पर माई चाइल्डिश विस्पर्स, विस्पर मतलब धीरे धीरे फुसफुसाना. इन टू हिज ईयर, टू पुल ऑन हिज स्लीव टू लेट हिम नो आई रियली डिजर्व्ड, है ना, उसके कानों में विस्पर किया मैंने, मुझे कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा कि इस आदमी को मैं सेंटा कहूँ. मैंने अपनी चाइल्डिश विस्पर्स उनके कानों में कही, उनकी स्लीव्स को पुल करके बताया कि मैं सच में डिजर्व करती हूँ जो भी मैंने मांगा है. आई पोस्ट मतलब बैठना या खड़े रहना फोटोग्राफ के लिए, है ना, पोज करना. फॉर एन इंस्टेंट फोटो विथ हिम, अ वुलन कैप ओवर माई क्रुक्ड ब्रेड्स. वुलन तो आपको पता है मेड ऑफ वुल, क्रुक्ड मतलब अनइवन, उसकी जो चोटी थी वो स्ट्रेट नहीं थी, अनइवन थी, क्रुकेड थी. मिटेंस, मिटेंस जो हम हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, ग्लव्स विथ वन सेक्शन फॉर फिंगर्स. ओके और उसमें सभी उंगलियां नहीं होती, मिटेंस में पूरा एक होता है ना मिटेंस. So let me explain you. The child does not find it odd to call this man Santa. Okay, यहाँ पे odd की जगह strange word था, ठीक है, आपने अलग word use किया है. The child did not find it odd to call this man Santa. She whispers her wishes into his ear, tugs his sleeves, and tries to convince him that she deserves the gifts. She also takes a quick photograph with him, wearing a woolen cap over her uneven braids and mittens attached to her coats. जो mittens थे वो कोट पे attached थे. Okay, so I hope you have understood this. हिंदी में समझाने की जरूरत है कि स्टैंजा को बहुत ही easy था. Now interpretation or analysis. So this stanza shows pure faith. The child belief is complete and unquestioning. बहुत important words है. Pure faith दिख रहा है कि child का जो belief है वो पूरा है और अनक्वेश्चनिंग है, क्योंकि वो उसको स्ट्रेंज नहीं मान रही है उसको सेंटा कहने में, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है. इट ऑल्सो पोर्ट्रेस चाइल्डहुड वल्नरेबिलिटी एंड लॉन्गिंग. शी वॉन्ट्स टू बी वर्दी ऑफ गिफ्ट्स. ये दो चीज़ को भी पोर्ट्रे करती है कि बच्चे कितने वल्नरेबल है ना, और कितना चाह रहे हैं. वल्नरेबल मतलब उनको कोई भी हार्म पहुंचा सकता है, बुद्धू बना सकता है, वल्नरेबल वो होता है, ठीक है. एंड लॉन्गिंग मतलब वो बहुत दिल से चाह रही है, बहुत लंबे समय से और बहुत इच्छा से किसी चीज़ को एकदम गहराई से चाहना इज लॉन्गिंग. ओके सो शी वॉन्ट्स टू बी वर्दी ऑफ गिफ्ट्स, क्योंकि वो उससे बता रही है कि मैं वर्दी हूँ इस गिफ्ट को. स्लीव्स ऊपर खींच के उसको अच्छे से बता रही है, ठीक है. तो यहाँ दो चीज़ दिख रही है, वल्नरेबिलिटी और लॉन्गिंग. फोटोग्राफ डिटेल्स एड्स रियलिज्म एंड नॉस्टैल्जिया टू द मेमोरी. ये जो डिटेल्स है कि मैंने, है ना,
ऐसे खड़े रह के या पोज करके एक फोटोग्राफ उनके साथ क्विक खिंचवाया। तो ये इस चीज़ से रियलिज्म दिख रहा है कि हाँ एक्चुअली ऐसा ही होता है ना क्रिसमस में। हैव यू एवर सीन और एक्सपीरियंस्ड लाइक दिस? प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स इफ़ यू हैव ना। और ये उसकी मेमोरी को नॉस्टैल्जिया भी दे रहा है। लिटरेरी डिवाइसेस क्या है इसमें? रिपीटेशन है। विस्पर माई चाइल्डिश विस्पर्स, सो इट गिव्स एम्फोसिस ऑन इनोसेंस। इमेजरी है, क्रुक्ड ब्रेड्स, मिटन, स्विन, तो एक विजुअल मेमोरी है ना। टोन टेंडर, नॉस्टैल्जिक और सिंसियर टोन है। नाउ दिस इज द लास्ट वन। No one could have convinced me this Santa couldn't slide down any chimney through his belly, didn't fill his suit, and his hands trembled just a bit as he lifted me from his lap. No one could have told me that a pink cheeked, pale skinned Santa was the only Santa. तो नो वन कुड हैव कन्विंस मी उस टाइम पे, क्योंकि मैं इनोसेंट थी, कोई भी मुझे कन्विंस नहीं। नो वन कुड हैव कन्विंस्ड मी, है ना, या परसुएडेड मी। कन्विंस मतलब परसुएडेड मी। दिस सेंटा कुडंट स्लाइड डाउन एनी चिमनी, कोई मुझे ऐसा कन्विंस ही नहीं कर सकता था। देखो यूजुअली सेंटा कैसा होता है, जो चिमनी में फंस जाते हैं, फैट सेंटा होते हैं। तो उस वक्त किसने भी मुझे कोई कन्विंस कर ही नहीं सकता था कि ये जो पतले दुबले से जो सेंटा थे, ही कुडंट स्लाइड डाउन एनी चिमनी थ्रू हिज बैली, है ना। वो तो आराम से कर सकते थे क्योंकि उनकी तो बैली थी ही नहीं। डिंट दो सॉरी एनी चिमनी दो हिज बैली डिंट फिल हिज सूट, ओके, एंड हिज हैंड्स ट्रेम्बल। तो इसके पूरे सूट को भी उसकी बेली ने कंप्लीटली फिल नहीं किया था, और उसके हाथ भी ट्रैम्बल हो रहे थे जस्ट अ बिट एज ही लिफ्टेड मी फ्रॉम हिज लैप। जब उन्होंने अपनी गोद से मुझे उठाया तो उनके हाथ ट्रैम्बल्ड हो रहे थे। नो वन कुड हैव टोल्ड मी डेट अ पिंक चीक वाले, पेल स्किन मतलब फेयर स्किन वाले सेंटा ही ओनली सेंटा होते हैं। आजकल हम यही बिलीव करते हैं ना, राइट, और यही प्रेजुडाइज है। सो कन्विंस्ड मीन्स परसुएडेड, ट्रेम्बल्ड मीन्स शुक स्लाइटली, पिंक चीक्ड मतलब रोजी चीक, लाल गालों वाला, पेल स्किन मतलब फेयर कॉम्प्लेक्शन। So no one could persuade the child that this Santa was not magical. She believes he can go down chimneys even through his stomach does not even fill the Santa suit. She believes that he can go down the chimney even though इनका स्टमक पूरे सेंटा सूट को फिल नहीं करता है, फिर भी वो चिमनी के में जा सकते हैं ना। His hands shake slightly, even his hands shake slightly when he lifts her, but she still does not doubt him. फिर भी वो डाउट नहीं कर रही है, even though उनके हाथ शेक कर रहे हैं। She also could not accept the idea that only a rosy, fair-skinned Santa is the true Santa. तो ये आइडिया अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं। फेथ ओवर फैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, फेथ ओवर फैक्ट्स। ये इस पोएम में आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल वीकनेस डजंट ब्रेक द चाइल्ड्स बिलीफ। द पोएम बिगिंस रिजेक्टिंग कल्चरल रूल्स, है ना। कल्चरल रूल्स जो है कि एक पेल कलर्ड वाइट कॉम्प्लेक्शन वाले रोजी चीक वाला ही सेंटा होता है, जिसका टमी इतना बड़ा होता है कि वो पूरे सूट को फिल कर ले। So the poem begins rejecting the cultural rules about who is allowed to be Santa. It exposes how whiteness is treated as standard and challenges that assumption. So ये expose करता है कि कैसे whiteness ही एक standard है, और उसको challenge, उस assumption को वो challenge करती है इस stanza में। अब literary devices देख सकते हैं। irony, adult sees the man's frailty, चाइल्ड सीज मैजिक ना। जो बड़े लोग हैं वो तो कितना फ्रिजाइल है, वो कैसी उसकी उंगलियां हैं, हाथ कांप रहे हैं, वो दिख रहा है, लेकिन बच्चे के अंदर तो सिर्फ मैजिक दिख रहा है। कॉन्ट्रास्ट, पिंक चीक्ड पेल स्किन्ड वर्सेस सेंटा शी मेट, सो कॉन्ट्रास्ट भी है। एंजबमेंट है यहाँ। ब्रोकन लाइन्स एको द स्पीकर्स रिमेंबर्ड वॉइस। जो ब्रोकन लाइन्स है वो क्या बता रही है? स्पीकर की रिमेंबर्ड वॉइस। There's one more stanza here. To worship, to beg for toys and candy, I wouldn't have believed them. Wouldn't have believed anyone who would tell me Santa couldn't look like me. Brown eyes, face, skin. Okay. So यहाँ worship का मतलब है admire deeply or treat as an idol, and beg means ask desperately.
सो टू वर्शिप, किसी की वर्शिप करना. टू बेग, बेग मतलब भीख मांगना, आस्क डेस्परेटली फॉर टॉयज एंड कैंडी. आई वुडेंट हैव बिलीव्ड देम. देखो ये पहले की लाइन से कंटिन्यू कर रहा है. देखो पहले की लाइन क्या थी? पेल स्किन सेंटा वॉज द ओनली सेंटा टू वर्शिप, टू बेग फॉर टॉयज एंड कैंडी. कि पेल स्किन सेंटा जो था वही एक वो सेंटा है जिसे हम वर्शिप करें और उससे ही हम टॉयज और कैंडी की भीख मांगे. आई वुडेंट हैव बिलीव्ड देम. वुडेंट हैव बिलीव्ड एनी वन हु वुड टेल मी सेंटा कुडंट लुक लाइक मी. मैं किसी को भी बिलीव नहीं करती किसने अगर मुझे कहा होता कि सेंटा मेरे जैसा नहीं दिख सकता. कैसा? ब्राउन आईज फेस स्किन. ओके, मेरे जैसी जिसकी आंखें हो, जिसका मेरे जैसा फेस हो, मेरे जैसी स्किन हो. तो इसका मीनिंग बता देती हूँ. शी वुड नॉट बिलीव एनी वन हु क्लेम्ड ओनली अ वाइट सेंटा शुड बी अडोर्ड एंड बेग्ड फॉर गिफ्ट्स. शी रिफ्यूजेस द आइडिया दैट सेंटा कैन नॉट रिजेंबल हर. फॉर हर Santa can have brown eyes, a brown face, brown skin like her own. Have you understood? तो अब हम जाते हैं एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन पे. दिस इज द पोएम्स सेंट्रल मैसेज. ओके, ये जो लास्ट वाला था ये पोएम का सेंट्रल मैसेज था. रिप्रेजेंटेशन मैटर्स. द चाइल्ड्स acceptance shows that identity and goodness are not tied to any one race. तो चाइल्ड ने इनको एक्सेप्ट किया है एज अ सेंटा, जो बताता है कि ये जो सेंटा की आइडेंटिटी या सेंटा की अच्छाई है ये किसी पर्टिकुलर रेस से बंधी हुई नहीं है. कि हमेशा से फेयर स्किन या फैट लोग या वही रेस वाले लोग सेंटा हो सकते हैं. ठीक है. द एंडिंग इज एन असर्शन ऑफ इक्वालिटी एंड सेल्फ रिकॉग्निशन. तो ये एंडिंग जो है वो असर्ट करती है कि सब लोग इक्वल है ना. और शी इज रिकॉग्नाइजिंग हर सेल्फ एज वेल ना. और उस सेंटा को भी वो रिकॉग्नाइज कर रही है कि सेंटा दे आर ऑल इक्वल. चाहे वो वाइट फैट सेंटा हो, रोजी चीक्ड वाला सेंटा, या ऐसा ये कलर वाला सेंटा, ब्राउन कलर सेंटा. शी इज रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट एंड शी इज फीलिंग गुड अबाउट इट. सो एक सेल्फ रिकॉग्निशन भी है और असर्शन भी है इक्वालिटी का. ओके, रिपीट लिटरेरी डिवाइसेस रिपीटेशन है यहाँ पे. वुडंट हैव बिलीव्ड 2 बार आया है यहाँ पे. तो फर्म रिफ्यूजल है यहाँ. लिस्टिंग. ओके, ब्राउन आइज फेस स्किन. तो डायरेक्ट असर्शन ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे दिखा रही है. लिस्ट किया गया हर चीज़ को, है ना. थीम या मैसेज क्या है? रेशियल रिप्रेजेंटेशन एंड चैलेंजिंग द स्टीरियोटाइप्स. So that was all about this poem. Okay. If you have not yet subscribed to my channel, do it right away because I'll be putting up all the stories and all the poems as well and the detailed explanation for ISC students. I'll also be uploading question and answers which are important for ISC point of view, and I'll be sharing lots and lots of important questions too. So keep the learning always on and please write in the comment section if you like the video, what you want me to do next and everything. It motivates me a lot. Thank you and bye-bye.